One of the things we want to do is to have a free-reading discussion on the issue of GST implementation in J&K. A lot of apprehensions in the mind of traders, civil society, industry, political parties, and I see a lot of stories being done by newspapers, some factually not very correct, some unfounded apprehensions. So I thought that we should try and understand what is this system, इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है. तो शुरुआत अगर करें तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है कि आज से 12-15 साल पहले जीएसटी पे कोशिश हो रही है पूरे मुल्क में ये एक रिजीम चेंज हो. 2006 में वैट आया तो एक वैट का सुपीरियर मॉडल जीएसटी है और एवोल्यूशन इसका 10-12 साल से चल रहा है. बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इसमें दो हिस्से हैं. एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 जो the Constitution of India was amended to bring in the GST regime. वो constitutional amendment जो है 101 that applies to rest of the country except J&K. The reason for that being that as per our own constitution and as per Article 370, no amendment can be applied. An amendment made to the Constitution of India can be applied to J&K directly. It has to go through a process, and the process is spelled out in Article 370 that the consent and concurrence of the state government, and on the basis of that concurrence and consent, the President issues an order and it gets extended. One technical reason also there is that when an amendment like this, which is a far-reaching amendment in terms of the fiscal setup of the country, a number of articles of the Constitution of India don't apply. But this Constitution amendment has references to the articles. So we perforce, for pure technical reasons, have to make some deletions. Then second, more substantive part is that because we have our own constitution, we will make some modifications, we will make some amendments, and with those amendments we will accommodate. The state government has been internally discussing this issue post the amendment which came in September last year. We have been engaged with it. It went to the cabinet also, and it was decided that decided by the cabinet that we shall go to the assembly and seek a broad resolution, build a certain consensus within the political system, within the larger civil society. Based on that, make recommendations to the Government of India, post which Constitution 101 in its modified form, and modifications I'll explain what kind of modifications and why we seek. Once those modifications are made, the President will issue a President's order. 46 have been already issued. This will be the 47th. And once that is done, then the SGST, which is the state's GST, will be put before the Assembly and will be passed by the Assembly. Post that, the GST regime will become operational and legally tenable in J&K. So this is the broad kind of introduction to the specificity of GST as a tax regime. Is a well-regarded tax regime. As I said, it's a superior version, more sophisticated version of VAT. It's exactly like your iPhones. iPhone 7 is going to be launched, so you can see it as that you had an iPhone 3, iPhone 4, anytime a better version comes. VAT was iPhone 6 and GST will be iPhone 7. It has better features, better quality. Biggest beneficiary, systemically speaking, in a country, VAT operates in 194 countries. Biggest beneficiary of this system of VAT, of GST, is the consumer. The first most important thing is very transparent system. All of you, I'm sure,
in your role as customers often buy and consume commodities. I don't know how many of you actually know what tax you pay on a commodity. I am not sure how many tax administrators know today what is the incidence of tax, what is the rate of tax. It is never written. बिल देने की तो बात दूर रही, कहीं पे आपका जिक्र भी नहीं है कि आप टैक्स कितना दे रहे हैं. And one of the greatest features of GST is that you actually know not only कि टैक्स कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कितना है और इंटरस्टेट टैक्स कितना है. It will be put on everything. And parallelly GST में एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ भी है. कि अगर आपको लगे कि दुकानदार आपको चीज महंगी दे रहा है, टैक्स गलत लगा रहा है, you can take recourse. So it's a very empowered customer experience. दूसरा फायदा अगर देखा जाए चिप बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरर है, अभी तक जब वो इनपुट लेता है, लकड़ी खरीदता है फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ी में जो टैक्स है उस पर टैक्स लगता है, फर्नीचर जाता है. नाउ ही विल गेट इनपुट टैक्स. सो इज इनपुट he actually gets a set off on that. And he pays only for that amount जो उसने वैल्यू एड किया था. मैं सुबह गुड मॉर्निंग आटा खरीदता है, उस आटे में टैक्स 40 रुपए का खरीदता है, केक बनाता है 100 रुपए का, जीएसटी 60 पे लगेगा, 40 इनपुट उसका वापस आएगा. तो जिस बेस पे ये लगता है वो कम है, उससे जो है कीमतें कम हो जाती है. दूसरा फायदा कस्टमर का ये है, अपार्ट ट्रांसपेरेंसी, कीमतें कम होंगी. अब ये नहीं कह सकता कि मैं 1 जुलाई को टैक्स लगेगा तो 2 जुलाई को कीमतें कम होंगी, ऐसा नहीं होगा. 3, 4, 6 महीने, 8 महीने आप देखेंगे कि ओवरऑल जो कमोडिटीज हैं, अगर आपको मैं ये बताऊं कि जीएसटी काउंसिल में 12,000 कमोडिटीज की 11,000 पर रेट लाके, और अंदाजा आपको इससे होगा कि टैक्स ये जो रेट से कम कैसे हुई है कि जो स्टेट्स है इनको करीबन 1,40,000 करोड़ का खसारा होगा. 1,40,000 crores is what is the anticipated loss of revenue by implementation of GST. This is only the reason being that your rates are much lower, and in fact apart from the rate, the incidence of tax is much lower. अगर सरकार की बात की जाए तो 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जीएसटी का फायदा उनको होगा जो कंज्यूमिंग स्टेट्स है. ये मैंने अब बहुत अखबार में भी देखा, हर बार ये एडवाइस हो रहा है कि इट्स अ कंजम्पशन टैक्स, इट्स अ टैक्स, फाइनल डेस्टिनेशन टैक्स. तो जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं जिनका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, जिनकी प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, जिनका ट्रेड डेफिसिट है, उनको फायदा होगा. नुकसान उन स्टेट्स को होगा जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका. इनको नुकसान होगा क्योंकि ये प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं. फायदा जेएंडके, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, तो जो स्टेट्स कंज्यूमर स्टेट्स हैं उनको फायदा होगा. तो जिस स्टेक होल्डर को भी आप देखें, अगर आम कस्टमर की बात भी आप निकाल दें, एक और चीज जीएसटी से होती है कि करप्शन बहुत कम हो जाता है. डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ करप्शन, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन कम हो जाता है. आज की डेट में आपकी जितना भी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, सारा कैश बेस्ड इकोनॉमी है, और उसके साथ फिर दोनों का काम भी होता है. इनपुट्स आपने कैश में लिया, उसका हिसाब भी कोई नहीं. तो जो इंसिडेंस ऑफ कैश है वो कम होगा, उससे करप्शन कम हो जाएगा, और उससे जो है पूरा एक सोसाइटियल चेंज आता है. अगर आप कहीं भी जाएं किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, तो बिना पूछे आपको बिल भी देता है, एग्जम्पशन भी देता है, वैट रिफंड भी देता है. यहां पे ऐसा नहीं होता क्योंकि सिस्टम जो टैक्स का है वो ऐसा सिस्टम है जिसको हमको डरा के धमका के सिस्टम मानते हैं. यू कांट अवॉइड टैक्सेस एंड डेथ. नाउ जीएसटी इज अ सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट. अब जो रोल टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का है वो बिल्कुल चेंज हो गया. अब आपको जाना ही नहीं है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में, आप अपना रिटर्न भरिए, सेल्फ असेस करिए. अगर गड़बड़ हुई, अगर आप इनवॉइसेस मैच नहीं हुए तो फिर ऑडिट होगा, उसमें मैं अलग से आऊंगा. लेकिन सेल्फ असेस मॉडल है.
आप अपना खुद करिए, बताइए क्या लाया, कितने का बेचा, क्या हुआ, और उसको अपलोड कर दीजिए। बाकी काम कंप्यूटर करेगा, ऑनलाइन सिस्टम है। तो जो वो टैक्स हैरेसमेंट होता था थ्रू टैक्स ऑफिशियल, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑडिट की बात आती है, सिर्फ 5% पे ऑडिट होगा। अगर 100 ट्रांजैक्शन है, 100 रिटर्न बने हैं, सिर्फ 5 पे अलाउड है लीगली, सिर्फ 5% पे आप ऑडिट कर सकते हैं। और उसमें भी रिस्क बेस्ड है। एक ट्रेडर है जिसका 5 बार इनवॉइस मैच नहीं हुआ, और एक ट्रेडर है जिसका 1 बार मैच नहीं हुआ, तो एक वाले को नहीं, 5 वाले को ऑडिट होगा। तो गरज ये कि जो हमारा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, उनका रोल कंप्लीटली रिडिफाइन हो जाएगा। They will become more like tax advisors, tax consultants, rather than tax collectors. This changes the way one functions in terms of paying taxes. Compliance improves. और एक और फायदा इसका सरकार के लिए ये है कि दुनिया भर में देखा गया है, जीएसटी जब लागू हो जाता है तो इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि पहली बार अब सिस्टम ट्रांजैक्शन, दुकानदार का जो ट्रांजैक्शन है उसको उसके इनकम के साथ जोड़ता है, और फिर वहां से इनकम टैक्स कंप्लायंस बेटर हो जाती है। तो एक पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जेएनके में कुछ हालात की वजह से, कुछ कल्चरल फीचर्स हमारे ऐसे हैं, मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया कि कैश टू जीडीपी रेशियो इज वेरी हाई। जिसमें जेके बैंक में चेयरमैन, मैंने बड़ी कोशिश की कि कैश थोड़ा कम हो जाए सिस्टम में, जेके बैंक चेक चले, बिकॉज कैश का एक बॉर्डर लाइन केस होता है। तो अगर नेशनली एवरेज है 10% की, हमारे यहां 17-18% कैश है, ग्लोबली 4 या 5% है। तो वो पूरा एक रिजीम चेंज होगा। इसमें भी दिक्कतें हैं, जाहिर है। जो बिजनेसमैन, मैं कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कैश का बहुत ज्यादा यूज होता है, चाहे गोल्ड है, जम ज्वेलरी है, कैश वजह से ज्यादा तकलीफ होगी उसको। और ऐसा कतई नहीं होगा कि आप कंफ्यूजन रहेगा, हलचल मचेगी। आपने देखा होगा कि जिस वक्त डीमोनेटाइजेशन हुआ, एक हलचल मची, लेकिन वो रिटेल लेवल पे थी। कस्टमर को तकलीफ थी, एटीएम में पैसा नहीं था, लाइन में खड़े रहो, कुछ लोग मर गए। इस बार भी वैसी ही हलचल होगी। आई कॉल दिस अ डिसरप्टिव पॉलिसी चेंज। थोड़ा डिसरप्शन होगा, लेकिन उसके गेन बहुत ज्यादा है। तो 3-4 महीने डिसरप्शन होगा, अडेप्शन उसमें हो जाएंगे आप, और अच्छा खासा होलसेल क्योस होगा, जिससे ये कि बिजनेस थोड़ी हिल जाएंगी, लेकिन 3-4 महीने के बाद एक नई लेवल पे आपका बिजनेस सेटअप जो है वो आएगा। तो लाइक यू हैव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज which disrupt the existing networks. Measures like demonetization, moving to GST are disruptive policy changes. एक स्टेटस को बन चुका है यहाँ पे, उसको थोड़ा हिलाने का है, और उससे जो है it give a new energy to businesses, particularly small business. अब इसमें खर्चात बहुत सारे मैंने देखे आए हैं कि आप 36 फॉर्म भरने पड़ेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप नोट करिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, कि 20 लाख से कम जो टर्नओवर है, रिटर्न भरना ही नहीं है। 75 लाख से कम टर्नओवर हो, लमसम में आप दे दीजिए, और बाकी जो वन सिंगल फॉर्म, कुछ नहीं करना है आप। 75 लाख के नीचे टर्नओवर हो, तो गरज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल विल बी फ्री फ्रॉम ऑल हैरेसमेंट। 20 लाख से कम हो तो होगा ही नहीं, 75 लाख से कम हो तो फॉर्म आप लमसम करके दे दीजिए। ये भी है कि businesses must grow. Small, unorganized, which is a large chunk of the economy. They must start doing accounts. I remember JK Bank chairman, I used to constantly tell small businesses कि अपना जो business आप चलाते हैं, ये सेविंग बैंक से मत चलाइए, करंट अकाउंट से शुरू करिए। और जब सैलाब आया, उस वक्त अगर करंट अकाउंट होता लोगों के पास, इंश्योरेंस मिल जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने 5 लाख सप्लायर को भेजे हैं, 14 को 15 को सैलाब आए, तो आप कोर्ट में भी जा सकते थे कि मैंने 5 लाख का सामान लिया था, डूब गया।
तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका चेंज हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, इट विल बिकम अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ बिजनेस. People will transition from a 20 lakh business to a 1 crore business. That is the natural growth. हमारे यहाँ पे वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी stunted businesses है, उसी लेवल पे रहती है, ग्रो नहीं कर पाती. तो एक इम्पेटस मिलेगा उनको ग्रो करने का. अब बात आई है इसमें कि जब जीएसटी रिजीम चेंज होगा तो क्या हमारी स्पेशल पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएसटी या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो अभी तक हम पे लागू नहीं हुआ है. द स्ट्रेट इम्प्लीकेशन इज कि स्टेटस इज मेंटेन. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि द डिफरेंस बिटवीन J&K एंड अदर स्टेट्स वेरी स्पेसिफिकली is in terms of the powers to tax with reference to our constitution. All states levy their powers to Article 246 of the Constitution of India. We levy from Section 5 of the Constitution of India. All the powers that we have will become enabling provisions, and we will not compromise on either Section 5 or 370, even by inference. Procedurally, I think we have taken a big step. For the first time, it has been proposed that even for those not required by law, तो आप असेंबली में जाएं, डिस्कस करें, ओपनली, ट्रांसपेरेंटली, जो आज तक कभी नहीं है. बहुत बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स आई. अमेंडमेंट्स ऐसी आई जिसमें गवर्नर का अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टेट लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से मनाई हुई 1975 में. बड़ी बड़ी चीजें हुई. लेकिन इस ट्रांसपेरेंसी, इस इंटेंट से आज तक कभी नहीं काम हुआ कि हम पब्लिकली बात करें, कंसेंसस बिल्ड करेंगे. नॉट जस्ट पॉलिटिकल कंसेंसस बट इवन लेजिस्लेटिव कंसेंसस. ऐसे में बात करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है. तो एक जो इंटेंट सरकार का ये था कि ये एक रिजीम चेंज है, इसमें कोई भी ऐसा आर्टिकल जो आज तक एक्सटेंड नहीं हुआ वो एक्सटेंड हो रहा है नहीं. जो अमेंडमेंट्स वहां हुई है उनको एक्सटेंड किया जा रहा है विदाउट एनी इम्प्लीकेशन ऑन the Constitution of Jammu and Kashmir or Article 370. 246 अमेंड हुआ. जो अमेंडमेंट्स है उसमें मॉडिफिकेशंस होंगी और जिस मॉडिफिकेशन हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है. तो एक परसेप्शन बनाया गया फिलहाल उसमें फिस्कल अटॉनमी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. उसमें 370 इम्पेयर हो रहा है. ऐसा तो कहीं पे भी नहीं. अगर किसी आप में से भी कोई मुझे बताए किस तरह से आपके दिमाग में ये खर्चा है कि कहाँ पे इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एग्जिस्टिंग पोजीशन पे. तो जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें भी पहले ही अगर आप देखें तो एग्जिस्टिंग पोजीशन शैल बी मेंटेन, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. लेकिन अगर उन बातों को आप छोड़ के उनसे बात करेंगे हम, आप देखें कि अगर हम जीएसटी नहीं लगाते और प्रोटेक्शन से अगर नहीं लगाते तो क्या होगा. सबसे पहली बात है ट्रेड कर नहीं पाएंगे आप. कोई भी ट्रेडर बाहर से सामान नहीं ला सकता. आपका जीएसटी नंबर नहीं होगा. डबल टैक्सेशन की बात तो उसके बाद की है. पहली बात यह है आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे. कैन वी लिव एज एन आइसोलेटेड इकोनॉमी? वी कैनॉट. As I was saying in the morning, noon till abundance. The basics of it. You will suddenly find that the economy is huge set of shortages. दूसरा, कुछ माल हम बाहर बेचते हैं, चाहे सेब हो, वॉलनट हो, चेरी हो, आप बेच नहीं पाएंगे. आपको जीएसटी नंबर नहीं है, तो ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री को, ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं. अब चूंकि आपका इंपोर्ट नेसेसिटीज का है, जरूरियात जिंदगी का है, you will face huge shortages. हाँ, ये पॉसिबल है कि जो जीएसटी रिजीम है इट इज अ B2B रिजीम, बिजनेस टू बिजनेस. इट्स नॉट अ B2C रिजीम. ये हो सकता है कि जो बाहर वाला ट्रेडर है वो डायरेक्टली B2C बिजनेस करे. उसका इंप्लीकेशन ये है कि जो बिजनेस ट्रेडिंग क्लास यहाँ पे है वो है आप जाके पठानकोट से सामान लाइए, आप करिए, ठीक. सो द ट्रेडिंग क्लास इज बैक, the dealers will benefit. As regards industry, we have incentives which shall continue. वो भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है. जब आप इंडस्ट्री का
मुझे याद है वैट में मैं इकोनॉमिक एडवाइजर था, उसको डिवाइस हमने मॉडल किया, ये कैसे करेंगे। इस बार भी हम एक वर्कआउट करेंगे, इट विल बिकम अ मच मोर ट्रांसपेरेंसी। आज की डेट में अगर आप पूछे, किसी सवाल पूछे मुझे कोई जर्नलिस्ट साहब आप कितना देते हैं टैक्स एग्जेम्पशन, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू बिकॉज इट्स अ रेमिशन, बट इफ आई गिव इट थ्रू बजटरी रूट देन आई नो एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई गिव। 400 करोड़ 500 करोड़, जैसे पावर में हमने किया। पावर में हम खरीदते हैं 9 रुपए यूनिट या 7 रुपए, बेचते हैं 2 रुपए। 5 रुपए की जो सब्सिडी थी कस्टमर को, उसको हम लॉस कहते थे। टीएनडी लॉस 70% 80%। तो इस बार हमने बजट में चेंज किया, हमने पावर डिपार्टमेंट को आप ऐसा मत करो, 4,500 करोड़ की सब्सिडी हम देते हैं आपको, आप अपने अकाउंट से दुरुस्त करिए। इसी तरह अगर एग्जेम्पशन मिलता था किसी को 1 लाख का, हम बजट से दे देंगे 1 लाख। तेरा आपका टैक्स जो है, आपकी टैक्स लायबिलिटी मैं भरूंगा, रिएम्बर्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना इनवॉइस बता दीजिए आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है, मैं भर दे दूंगा। तो उसके तरीकेकार बहुत हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीएसटी रिजीम में एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है, ये बात सही है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, और इसकी बात जीएसटी काउंसिल में हुई है, उसमें एग्रीमेंट भी हुआ है कि स्टेट जो है जम्मू कश्मीर जहां पे इंसेंटिव जरूरी है, क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं है, हम टेल एंड पे हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, कोई इंडस्ट्री लगाता नहीं है। जितने भी इंसेंटिव हैं हमारे पास 2 टाइप के इंसेंटिव हैं, सेंटर के हैं, स्टेट के हैं। स्टेट वाले हम करेंगे, सेंटर का अपना शेयर होगा 58% वो देंगे, बाकी हम करेंगे। ये इंडस्ट्रियल इंसेंटिव है। उसके बाद एनुअली हमने होटल्स का दिया था, उनको बजट डिसीजन है, जब बजट में हम आएंगे उस पर चर्चा करेंगे कि हम करें ना करें। लेकिन जो बेसिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंसेंटिव्स हैं हमारे, कुछ तो 2026 तक जा रहे हैं, 2020 तक जा रहे हैं, वो कायम रहेंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। कुछ एग्जेम्पशन 2019 में खत्म हो रहे हैं, कुछ 2022 में खत्म हो रहे हैं, कुछ 2026 में खत्म हो रहे हैं, हम उनको यूनिफॉर्म करेंगे। एक कट ऑफ डेट देके मानिए 2025 तक सब इंसेंटिव्स हम कंटिन्यू करेंगे, तो वो भी हम इसमें फैक्टर कर रहे हैं। What I really wanted to communicate also is that what we will have is a GST. It is beneficial for us. नहीं लगाएंगे, the worst sufferers will not be government. It will be trade, it will be business, and most importantly, it will be the customer, the common man of Jammu Kashmir. इस पर आएगा भी माल, यहाँ पे टैक्स इवेजन होगा, अवॉइडेंस होगा, स्मगलिंग होगी। जैसे एक जमाने में सिगरेट की स्मगलिंग होती थी, यू विल चार्ज द कस्टमर मच मोर। जो 100 रुपए की चीज है 120 130 में आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट 2000 करोड़ ज्यादा आएंगे, गिर जाएगा। बजट हमारा 80,000 करोड़ का है, तो 2000 करोड़ पे वैसे भी उतना बड़ा मसला नहीं। आई डोंट थिंक द प्राइम ड्राइवर ऑफ दिस शुड बी स्टेट गवर्नमेंट। द कस्टमर ऑफ जम्मू कश्मीर शुड इट्स इन हिज इंटरेस्ट एंड ही शुड बी द वन शुड अंडरस्टैंड हो क्या रहा है और परसेप्शन क्या क्रिएट किया जा रहा है। कहीं पे भी किसी भी आर्टिकल में वायलेशन नहीं हो रहा है, नथिंग, नो स्पेशल पोजीशन being eroded, no legislative competence being eroded, that will be all protected। रेट्स, सब बात उठती है उस पर, सब रेट्स 5 रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, यूनिफॉर्म रेट्स है। तो आप क्या 12 की जगह 13 लगा सकते हैं? ये सवाल उठते हैं। ये आज की बात नहीं, 2012 में वैट में हमने एग्री किया हार्मोनाइजेशन। इट इज कॉल्ड हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेस। देयर इज नो लेजिस्लेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ दैट। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट्स हमारे जैसे स्टेट्स हैं, वी वुड लूज इन टैक्स वॉर्स vis-a-vis पंजाब। वो अपना रेट काटते थे, मारुति की गाड़ियां वहां से खरीद जाती क्योंकि उनका रेट्स लो थे। अब हार्मोनाइज हो गए हैं रेट्स अक्रॉस द कंट्री। फॉलोइंग दैट बैंड इज नॉट erosion of the legislative competence. No, that still remains. It's an agreement. It's an MOU in the interest of the state, in the interest of the markets. जब मैं इसी रेट पे चलूंगा क्योंकि उसमें फिर कैपिटल फ्लाइट नहीं होती, ट्रेड फ्लाइट नहीं होती, टैक्स वॉर्स नहीं होते हैं, और हमारी रियासत गरीब रियासत है। उसका वी कांट अफोर्ड दोज टैक्स वॉर्स, इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू डू दैट। तो मोटी मोटी बात जो है, जीएसटी इट बेनिफिट्स ऑल sections of the society and including government, but most importantly, it benefits the customer in terms of transparency, in terms of pricing,
in terms of accessibility. It benefits the trader because he has access to markets. If GST is not implemented, the worst sufferer will be trader, followed by the customer, followed by industry, and last of all, the government. It's really not a governmental compulsion in that sense. हाँ, तो एक और बात फिर मैं एग्जाम्पशन की बात कर रहा था कि एक हमारे अंदर पॉलिसी एग्जाम्पशन है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाली एग्जाम्पशन कुछ ऐसे हैं जो हम हर साल देते हैं. अब सहराब आया तो हमने एक्सटेंड कर दिया टूरिस्ट प्रमोशन की, होटल्स को हमने एग्जाम्पशन दी. वो पॉलिसी एग्जाम्पशन नहीं है, बजटी इन्वेंटरी में चलता है. जब मैं नेक्स्ट बजट पेश करूंगा आई विल टेक अ व्यू ऑन इट, साहब ये माफ कर दो, टूरिस्ट सीजन खराब हो गया हमारा, कैपेबिलिटी नहीं है पे करने की, ठीक है. वो प्रमोशनल इश्यूज है, दे आर नॉट टैक्स एग्जाम्पशंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ मिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो बीइंग स्प्रेड. 2,500 करोड़ के एग्जाम्पशन का क्या होगा? 2,500 करोड़ एग्जाम्पशन हमारे नहीं है. पॉलिसी एग्जाम्पशन एक है, प्रमोशनल एग्जाम्पशन एक है. That will be taken and none of them is impaired by GST. ऐसी बात नहीं है. We are still empowered to do what we want to do for promotion of our trade and industry. We will look at those things. तो अगर आप, if you are looking at a headline, since I have been in this business, what we are saying is the special GST, not a separate GST. It's special because we have certain things which, as you will see, for instance, dispute resolution, appellate authority. हमारी अपनी ऐसे हाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी स्टेट बेस्ड डीलर्स हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा. एज इट इज सेंट्रल एक्साइज का अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे है. सेंट्रल एक्साइज वाज एक्सटेंडेड टू J&K 1954, वो CGST बन गया. CST 1958 में लगा, उसको IGST बनाया आपने. तो फर्क उसमें कुछ नहीं है. अगर GST को देखा जाए उस नजरिए से, CGST एक्साइज, SGST अपना हमारा जो है सेल्स टैक्स, IGST CST, ये तीन कंबाइन करके बन जाता है, एक रेट बन जाता है. तो हमने कोशिश यही की है, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन व्हिच इज कंप्लीटली सेफगार्ड, कि एडमिनिस्ट्रेटिव, local, labor, appellate authority, those kind of things shall be factored in, which gives us the scope of a special GST for J&K, not a separate GST, because somewhere I saw, I'm now referring to a story in GK about separate, upward evolution. If somebody wants to discuss that, I'm very happy to discuss it. It's a constitutional impossibility and an operational nightmare. It is a scheme that doesn't exist. That report was never even submitted to government. Nobody even signed it. A report was given by a committee was set up. The cabinet committee also never submitted a report as per our records. And even that report, which was looking at an upward evolution, कि हम सब आप अपना CGST बनाइए यहाँ पे. CGST स्टेट बनाए तो सेंटर को कहे भैया तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, और मैं 30 स्टेटों को बोलूं कि आप वो क्या करें IGST में. I mean, it is. Or also, if that scheme is to be followed, it will result in massive change in the Constitution of Jammu and Kashmir. In particular, Section 115, the Consolidated Fund of Jammu and Kashmir. Because any money that comes, I can't withdraw it unless approval is taken. And I have to do it on a daily basis if I do that. So it's a very chaotic scheme, which has no basis in operational reality. But it's a thing that can be thrown up, a red herring as it is. So practical, looking at the situation, looking at what our current competencies are. How can you legislate all those characters within such a... Yeah, that's what I'm saying. Right? It's like that, done. It was not even accepted by the government. Never submitted, so that should tell you how it is. But nevertheless, that's not where I want to go. If there is a specific question, I'm very happy to answer. What I'm saying is that we'll have a special GST, which has its own features, distinct from the thing, with enough safeguards, enough and more safeguards, to protect not only our constitutional position, but also our legislative competence in matters of taxation and fiscal policy.